everybody. Let us start lesson 3, understanding quadrilaterals. This is your first step towards geometry, and therefore you have to be very careful, because if your first step is wrong, then the entire journey goes in a different direction. So please try to focus, because there are a lot of new words which are going to come, and all those new words you will have to remember and practice maximum. So first step, take your pen and notebook and start writing lesson 3, understanding quadrilaterals. We have to write a lot in this chapter, but one sentences, but लिखना ज़रूर, वरना टेस्ट में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और सब मिक्स हो जाएगा. इंट्रोडक्शन. जब मैं बोलूँ लिखो तो ये लिखना, क्या लिखना है वो मैं बताते रहूँगा, डोंट वरी. सो इंट्रोडक्शन, it takes back to 7th standard. Now I don't teach 7th standard, so I don't know exactly तुमने क्या पढ़ा था, but apparently 7th की टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें होनी चाहिए, which is what do you mean by a curve. Curves are of two types, simple curve and not simple curve, and simple curve are of two types, closed and not closed. Let us first understand the meaning, then I'll tell you what to write. Curve is nothing but a line. It can be a straight line, it can be a crooked line, it can be a zigzag line, it can be curves like this. All are called curves. बुक पे कोई भी लिटाड़ा करो, वो कर्व है. बट among all these curves, simple curve कौन सी है? Simple curve are those which do not cut itself. Cut का मतलब intersect. ये देखो यहाँ पे दो लाइन intersect हो रही है at this point. The curve is cutting itself. Here the curve is cutting itself at 1, 2, 3, 4. How many points it is touching each other or cutting each other? Therefore these are called not simple curves. But the top curves which you see, the curve is not cutting itself. खुद को काटती नहीं है, ऐसे 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 चलते जाना, this is simple curve. But ऐसे ऐसे करके वापस आके कट करना, this is not simple. In simple curves, closed curves means something like this. There are no loose ends. But not closed curves is something like this. They all have free ends. આ પૂછડા જે છે એ દેખાય છે, and therefore they are not closed. This is closed. This is also not closed. So closed means there should not be loose ends visible at all. They should be joined with each other, not left loose like this. Let's look at this table from textbook and try to match the following. Go slow. Closed, closed. Not closed and not simple. दो क्लोज्ड है, तो पहले ये सब में से क्लोज्ड फिगर कौन से हो सकते हैं? दिस कैन बी अ क्लोज्ड फिगर, दिस कैन बी अ क्लोज्ड फिगर, एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ क्लोज्ड फिगर. सिंपल क्लोज्ड, सिंपल मतलब खुद को कट नहीं करता. ये खुद को कट कर रहा है, ये खुद को कट नहीं करता, ये खुद को कट कर रहा है यहाँ पे. Therefore automatically this is a simple closed curve, not cutting each other, closed figure. Closed, that is not simple. Closed लेकिन एक दूसरे को कट कर रहा है.
वेट अ मिनट, डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे. क्लोज्ड का डेफिनेशन है नो ओपन एंड्स, नो लूज एंड्स. ક્લોઝડ का डेफिनेशन है नो लूज एंड्स. आज छुट्टा पूछड़ा છે ना होवा જોઈએ, तो फिर मैंने गलती की. इसके पास तो लूज एंड्स है, दिस हैज लूज एंड्स, देयरफॉर ये क्लोज्ड नहीं है. So this is closed and this is closed because they both do not have loose ends. This has two loose ends. This has two loose ends. Therefore they are not closed. Closed simple, and this is closed not simple because it cuts each other. Simple curve not closed. ये रहा not closed और ये simple है because ये खुद को कट नहीं करता. And not a simple curve. Last option is D. So I hope you have understood. Let's look at it one more time. Still you don't have to write anything. मैं लिखवाऊंगा, वो लिखना बाद में. What is a curve? Curve is collection of many points. बहुत सारे points को डॉट 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 ज्वाइन करते जाओ तो लाइन बनती जाती है. And that makes it a curve. This is a curve. Simple curve which do not intersect itself. This is a simple curve जो खुद को कट नहीं करती. बट ये सिंपल कर्व नहीं है बिकॉज इट कट्स. ये भी सिंपल कर्व नहीं है बिकॉज इट कट्स. क्लोज सिंपल कर्व, नो ओपन एंड्स. नॉट क्लोज सिंपल कर्व, इट हैज ओपन एंड्स. एंड नॉट सिंपल, इट इंटरसेक्ट्स इटसेल्फ. तो 5 वर्ड सीखे. सिंपल, not simple, closed, not closed, and what is a curve. Start writing the first definition. You can pause the video and copy these 4 sentences. Simple curve is equal to never intersect itself, never cut itself. Not simple curve, it intersects itself or cuts itself. Closed curve has no loose ends, it has no open ends, the ends are joined. And not closed has loose ends, open ends, and ends are not joined. Pause the video, copy the 4 sentences. आगे कर्व्स, उसमें भी सिंपल कर्व्स, उसमें क्लोज्ड कर्व्स से पॉलीगॉन बनते हैं. सो वंस अगेन इट्स अ रिविजन. ये टेबल भी बनाओ, सीरियल नंबर मत देना. मेक दिस टेबल. कर्व्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपल, नॉट सिंपल. नॉट सिंपल में ऐसे कट करके हाईलाइट करो. एंड सिंपल इज डिवाइडेड इनटू क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड. क्लोज्ड में ड्रॉ सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर. एंड नॉट क्लोज्ड में C, U, N, V, W, M, all these are open curves. Or basically not closed but simple, they do not intersect each other. X नहीं आ सकता क्योंकि X एक दूसरे को कट करता है. अब क्लोज्ड के अंदर there are polygons.
and not polygon. So now I am taking one step ahead, continue copying. पॉलीगॉन क्या होता है और नॉट पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन में ब्रैकेट में लिखो स्ट्रेट लाइंस ओनली, और नॉट पॉलीगॉन में लिखो कर्व्स. What is a polygon? Polygon is something made up of straight lines only. So look at this. I'm using only exact straight lines and making whatever shape I want to, but it is only made up of closed. They are all closed, they are all simple, and they are all polygons because they are made up of straight lines. But not polygons में स्ट्रेट लाइन तो हो सकती है, बट साथ में कर्व्स भी होते हैं. तो कर्व्स भी हो सकती है का मतलब है इट इज लाइक दिस. So I hope you have made the chart with me, or pause the video and make again. ये चार्ट बाय हार्ट होगा, बेसिक डेफिनेशन पता होंगे तो इजी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रैक करने के लिए, वरना बहुत भारी पड़ेगा. सो कर्व्स आर सिंपल एंड नॉट सिंपल, मीन्स नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग. सिंपल में क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड. क्लोज्ड में देर आर नो लूज एंड्स, नॉट क्लोज्ड हैव लूज एंड्स. क्लोज्ड के अंदर पॉलीगॉन एंड नॉट पॉलीगॉन. नॉट पॉलीगॉन में कर्व्स होती है और पॉलीगॉन में कर्व्स नहीं, ओनली स्ट्रेट लाइंस. एंड फाइनली पॉलीगॉन्स के नीचे divided into two parts, regular and not regular. Regular polygon, not regular polygon. तुम खुद ही गैस करो कि क्या फर्क है दोनों में. And not regular polygon, so the basic definition is regular polygons have all side same. इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड सेम होती है, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑल द साइड्स शुड बी सेम, देन इट इज रेगुलर पॉलीगॉन. इफ ऑल साइड्स आर नॉट सेम, इट्स नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन. दैट्स ऑल. इट्स वेरी इजी. दिस चार्ट शुड बी बाय हार्ट, और ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं बना रहा हूँ बिकॉज इट इज़ फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड एज पर टेक्स्ट बुक, बट आई एम स्टिल टीचिंग यू द सेम. So look at this master list of simple, closed, regular polygons. Regular हाँ बोल सकते हैं. Simple, closed, regular polygon. हर एक वर्ड का मीनिंग है, वापस वही बता रहा हूँ. सिंपल मीन्स डू नॉट कट ईच अदर. क्लोज्ड मीन्स नो लूज एंड्स, छुट्टा छेड़ा નથી. रेगुलर मीन्स ऑल साइड सेम, एंड पॉलीगॉन मीन्स ओनली स्ट्रेट लाइन्स. ऑफ कोर्स ये रेगुलर नहीं है बिकॉज ये साइड बड़ी है विच इज शोन विथ मोर डैशेस, एंड दिस साइड इज स्मॉल विच इज शोन विथ लेस डैश.
तो ये सिंबॉलिक है कि तीनों साइड अलग है तो रेगुलर नहीं है, तीनों साइड सेम है तो रेगुलर है. कंटिन्यू राइटिंग. पॉइंट नंबर 5. 5, 6 एंड 7. फिर मैं आगे बताऊंगा, पहले ये कॉपी कर लो. फिफ्थ says, what is a polygon? Simple closed curve made up of only straight lines. Diagonal, which I'll tell you later, but you copy it when two non-consecutive vertices are joined in a polygon. And formula to find number of diagonals is n into n minus 3 upon 2. Pause the video, copy it now. What is a diagonal? Now look at this. 3 sides makes a triangle. 2 और 1 साइड नहीं होती है क्योंकि 2 साइड से पॉलीगॉन नहीं बनता है, 1 साइड से भी पॉलीगॉन नहीं बनता है. इमेजिन करो टूथपिक. टूथपिक पता है ना, दांत में कुछ फंस जाता है तो एक टूथपिक दूँ और 2 टूथपिक दूँ. कैन यू मेक अ क्लोज्ड फिगर? इम्पॉसिबल. एक अकेली टूथपिक से क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता. 2 टूथपिक से सिर्फ वी बनता है, नथिंग एल्स. बट इफ आई गिव यू 3 टूथपिक्स, then you can definitely make a closed figure. Therefore, polygon starts from 3 sides. And in these 3 sides, they can be equal, then it's called regular. Otherwise, it is called not regular. But है तो polygon. 4 side quadrilateral. Pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon and decagon. और अगर 10 से ज़्यादा साइड है, सपोज 15 साइड्स आर देयर, then it will be called 15 gon. 12 sides are there, then it will be called 12 gon. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. वो सर्कल नहीं दिखेगा. It will be something like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डेकागॉन. सो हर एक का नाम याद होना चाहिए. Therefore, again pause the video and copy the name. 3 is triangle, 4 is quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. Figure with 9 sides is nonagon, 8 side octagon, etc. हाँ, अब डायगनल की बात चल रही थी. What is a diagonal? ऑल्टरनेट वर्टाइस को ज्वाइन करो तो डायगनल मिलता है. वर्टाइस मतलब ये डॉट. ऑल्टरनेट वर्टाइस एक छोड़ के. सो लुक एट दिस ट्राइंगल ABC. ए को पकड़ो, उसके बाजू वाला छोड़ के दूसरा पकड़ो. ए के बाजू में बी छोड़ के दूसरा पकड़ो और उसको ज्वाइन करो तो वो डायगनल बनता है. लेकिन ट्राइंगल हैज नो डायगनल. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. सो फॉरगेट इट, क्योंकि ये तो साइड है. ए बी सी डी. ए को पकड़ो, ए के बाजू में बी छोड़ के दूसरा पकड़ो और उसको ज्वाइन करो तो यू गेट डायगनल. सिमिलरली बी को पकड़ो, बाजू में सी है उसको छोड़ दो, उसके बाद वाला पकड़ो और उसको ज्वाइन करो. बी डी इज ऑल्सो डायगनल. ए बी सी डी ई. कैच ए, बाजू में बी छोड़ के सी. ए सी इज अ डायगनल. सिमिलरली कैच ए, बाजू में ई छोड़ के डी, तो ए डी भी एक डायगनल है. फिर बी पकड़ो, बाजू में सी छोड़ के डी, सो बी डी इज अ डायगनल. और बी के लेफ्ट साइड ए छोड़ के ई,
बी ई इज ए डायगनल। फिर सी पकड़ो, डी छोड़ के ई और बी छोड़ के ए विच इज ऑलरेडी ज्वाइंट। दीज आर ऑल कॉल्ड डायगनल्स। डायगनल्स मतलब एक वर्टेक्स को पकड़ो और एक छोड़ के बाकी के साथ ज्वाइन करो, बेसिकली बाजू वाले दोनों छोड़ देने, एंड यू हैव टू ज्वाइन, देन यू हैव डायगनल्स। एंड एवरी टाइम side increases, the number of diagonals keeps on increasing. डायगनल्स की मात्रा बढ़ते जाती है जैसे जैसे साइड बढ़ते जाती है। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ डायगनल्स इज बाय दिस फॉर्मूला n into n minus 3 by 2. So simplest example, a quadrilateral has how many diagonals? 2 diagonals, criss cross। और वो 2 डायगनल्स कैसे आता है फॉर्मूला में से? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड होती है, तो डायगनल्स कितने? डायगनल्स की जगह पे, डायगनल्स के फॉर्मूला में n की जगह पे नंबर ऑफ साइड्स डाल दो, 4 into 4 minus 3 upon 2, which is 4 into 1 upon 2, which is 4 upon 2, 2 diagonals. How many diagonals does a heptagon have? तो पहले हेप्टागन ड्रॉ करो, और हेप्टागन का मतलब है 7 साइड। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7, A B C D E F G। डायगनल्स मतलब बाजू वाले छोड़ के दूसरों के साथ कनेक्ट करना है। 1 2 3 4, ए का पड़ोसी बी और जी छोड़ दिया। फिर जी लो 5 6 7 8, एफ लो 9 10 11, ये देखो ज्वाइन किया हुआ है 12, और मतलब 12 नहीं आएगा, 11 12 13। आंसर इज 13 diagonals. Let's check by using the formula n into n minus 3 by 2. n is 7, 7 साइड वाला हेप्टागन है, so 7 into 7 minus 3 by 2, 7 into 4 by 2, 7 2 जा 14 होने चाहिए, विच मीन्स हमने एक डायगनल ड्रॉ करना मिस कर दिया है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि वो कौन सा है। ए से 4, हर एक पॉइंट से 4 डायगनल निकल रहे हैं, मुझे मिल गया। ध्यान से देखो, डी बी ज्वाइन नहीं किया अब तक। डी का पड़ोसी सी, सी छोड़ के बी, डी बी ज्वाइन करो। देयरफॉर डी बी was missing, hence we were right. There are 14 diagonals possible. You don't have to draw at all, you have to use the formula and calculate the number of diagonals. So that's how you can calculate the number of diagonals. Remember the formula, remember what is a diagonal. अब आगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट, अरे वन नहीं, ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ये डेफिनेशन है। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सिंपल मीन्स नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। क्लोज्ड मतलब कोई लूज एंड्स नहीं होने चाहिए। लूज एंड्स मतलब आवा पॉइंटेड, जहां पे तुम एरो बना सकते हो।
इसके पास लूज एंड्स तो नहीं है, बट ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है जो नहीं चलेगा, ये भी खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है जो नहीं चलेगा, और ये लूज एंड्स है. सो दे आर ऑल कर्व्स बट दे आर नॉट पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स आर क्लोज्ड फिगर्स, सिंपल फिगर्स मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. और अगर ये पॉलीगॉन में सारी साइड सेम है तो इट विल बी कॉल्ड रेगुलर, और सारी साइड सेम नहीं है तो इट विल बी कॉल्ड नॉट रेगुलर. डायगनल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अंदर अंदर जब ज्वाइन करते हैं वर्टाइसिस को तो डायगनल्स बनते हैं. ई चूज करो तो पड़ोसी को छोड़ देने का, ए और डी छोड़ दो तो सी बी कैन बी जॉइंट. ए में बी छोड़ दो और ई छोड़ दो तो डी, एंड बी में ए सी छोड़ के बी ई एंड बी डी. And this number of diagonals can be confirmed by using the formula for finding number of diagonals. Formula for finding number of diagonals is n into n minus 3 by 2. How many sides does the above polygon have? A, B, B, C, C, D, D, E, E, A. 5 side. So 5 into 5 minus 3 upon 2 is equal to 5. Therefore, can you count 5 diagonals? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. And the last structure is a different type of polygon. एरो शेप का पॉलीगॉन है. और एरो शेप के पॉलीगॉन में डायगनल्स कैसे बनते हैं? सो डायगनल बनाने के लिए चूज एनी पॉइंट, सपोज के, तो के के दो पड़ोसी छोड़ दो. के का पड़ोसी है एल और एन, छोड़ दो तो एम मिलता है. जॉइन के एम, दिस इज द फर्स्ट डायगनल. और फिर दूसरा कोई पॉइंट चूज करो एल, एल का पड़ोसी के और एम है, छोड़ दो तो यू विल जॉइन इट विथ एन. Do you observe that there is a difference in these three figures? What is the difference? The difference is इसका एक diagonal बाहर है. The shape is an arrow. The main quadrilateral is this arrow. और एरो में एक डायगनल तो अंदर है लेकिन एक डायगनल बाहर है. एंड देर इज अ नेम गिवन फॉर सच फिगर्स. दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल नहीं, पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन में एक ही मेन फर्क है, बहुत ही ईजी है. All the diagonals, whatever diagonals you draw, they are all inside the polygon. All the diagonals means joining the opposite vertices. They are inside the polygon. Then they are called convex. But if one of the diagonal is outside, जैसे ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स, in that case it is called concave. So convex concave का डेफिनेशन लिखने का टाइम आ गया है. लुक एट योर सीरियल नंबर. तुमने कहाँ तक लिखा था? 7, 8, 9. अभी 8 और 9 लिखेंगे. सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग. Write down the next 4 points.
convex polygon, concave polygon, interior of polygon and exterior of polygon. Pause the video, copy the 4 sentences. What is interior and exterior of polygon? Interior of polygon का मतलब होता है inside of the polygon with the boundary included. Boundary is this red line जिससे actual polygon बनता है, और boundary के साथ साथ you also have to include the inside. This entire thing is called interior of polygon. And exterior of polygon का मतलब है outside the polygon, everything outside the polygon, and boundary is not included. That's all. Interior and exterior of anything, basic rule है, interior of anything is actual interior and the boundary, and exterior is just the exterior, no boundary included. That's all. आगे बढ़ते हैं. रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर सारी साइड्स और सारे एंगल सेम है, जी हाँ, अब मैं एंगल्स के बारे में भी बता रहा हूँ. सारी साइड सेम, इक्विलैटरल ट्राइंगल. सारी साइड सेम, स्क्वायर. सारी साइड सेम, 1 2 3 4 5, पेंटागन. सारी साइड सेम, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन. दे आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन्स. बट एक साइड बड़ी और बाकी छोटी है, या छोटा बड़ा कुछ है, तो ये सबसे बड़ी साइड है, ये सबसे बड़ी साइड है, ये सबसे बड़ी साइड है, और ये सबसे बड़ी साइड है, बाकी सब छोटा है उससे, इरेगुलर पॉलीगॉन. सो रिमेंबर, इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड्स आर रेगुलर, अदरवाइज इट इज इरेगुलर. और अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे ही, ऑटोमेटिक. इफ ऑल साइड सेम, देन ऑल एंगल्स आर सेम. सो कॉपी दिस 2 more sentences now. Regular polygon definition: all sides and all angles are same. Example: equilateral triangle, square, pentagon, hexagon, etc. And irregular polygon में all sides and all angles are not same. Angle sum property. Angle sum property का मतलब है कि कोई भी फिगर ले लो, all the figures have some angle inside it. This is angle 1 2 3 4 5 6 angles, and these 6 angles have some specific total. If you take this structure, it has 4 angles, 1 2 3 4. This also has 4 angles, 1 2 3 4. This also has 4 angles, 1 2 3 4. This has 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 angles, 4 angles, 4 angles, 4 angles, 6 angles. साइड्स गिनोगे तो भी सेम होगी, 1 2 3 4 5 6, 4 4 4 sides, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 sides.
तो साइड्स और एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, और ये सारे एंगल्स का टोटल फाइंड करने का शॉर्टकट फॉर्मूला is now what we are going to do, which is called angle sum property. Angle sum property means the formula to find out what is the total of all the angles in every structure. तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, सात साइड, आठ साइड. If it's a three side, n is 3. If it is four side, n is 4. If it is five sides, n is 5. It is 6, n is 6. N can be 7, 8, 9, 10. नाम बाय हार्ट करना है. ट्राइंगल, स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन. हाउ डू यू फाइंड कि तीन एंगल का टोटल कितना होगा? यूज द फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 180. n मतलब 3 माइनस 2 इंटू 180, आंसर 180. 4 माइनस 2 इंटू 180 मीन्स 2 इंटू 180, 360. 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, 540. So on and so forth. So you have to now make a table. This is the last topic for this lecture. Look at this table. This contains a lot of information which you have to copy it. What is the information? The first thing in the first column is the shape. The shape is triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. n मतलब number of sides 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और फिर sum of all I. I का मतलब होता है interior angle. You can read from here. So sum of all interior angles का formula है I is equal sum of I मतलब sum of all interior angle is equal to n minus 2 into 180. So n minus 2 into 180 अब भी यूज़ किया था. 180, 360, 540 कैलकुलेट किया था. आगे क्या है? 720, 900, 1080, 1260 and 1440. This is the total. If you have a structure with 10 sides, the total will always be 1440. अगर ये सारे शेप रेगुलर है, रेगुलर मतलब all angles are same, तो ये चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल ना होके स्क्वायर बन जाएगा, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन. इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर सेम, देन यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल इंटीरियर एंगल. ये सारे एंगल सेम है, और वो क्या है इंटीरियर एंगल, वो फाइंड करने के लिए you just have to divide the total by number of sides या number of angle. तो ट्राइंगल में टोटल इज 180. 180 को 3 से डिवाइड करो, 60 is your answer. Means all the three angles are 60, 60, 60. क्वाड्रिलेटरल अगर रेगुलर है तो उसको स्क्वायर बुला सकते हैं, और स्क्वायर में चार साइड्स होती है. टोटल इज 360 डिग्रीज. 360 by 4, each angle is 90. पेंटागन में ईच एंगल इज 108, हेक्सागन में ईच एंगल इज 120, एक्सेट्रा. लेट मी शो यू अ डिटेल्ड एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागन. हेक्सागन हैज 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And it has 6 angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All angles are same, therefore same symbol is used. वरना मैं डबल भी कर सकता हूँ, डॉट कर सकता हूँ, ऐसे
डिज़ाइन कर सकता हूँ। अलग अलग डिज़ाइन का मतलब है सारे एंगल अलग है, बट यहाँ पे सारे एंगल सेम है एंड साइड्स आर ऑल्सो सेम, जिसमें ये मैं डैश करता हूँ, छोटा सा डैश मीन्स ऑल साइड्स आर सेम, बट इफ़ आई डू डबल डैश हियर इट मीन्स ये साइड अलग है। दिखती है कि नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये अलग है, ये लंबी या छोटी हो सकती, बट ऐसा नहीं है। ऑल एंगल सेम, ऑल साइड सेम, इट्स अ हेक्सागन, n is equal to 6, name is hexagon. Let us find sum of all angles, and the sum of all angles of hexagon, the formula is n minus 2 into 180, which is 6 minus 2 into 180, 4 into 180, 720 डिग्री, और टोटल 720 डिग्री है, तो ईच इंटीरियर एंगल इज हाउ मच, ये हर एक इंटीरियर एंगल का क्या वैल्यू है, तो यू हैव टू से सम अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सम 720 है और नंबर ऑफ साइड्स है 6, बार छक बोत 13, 120 डिग्री, तो हर एक एंगल 120 है। दैट्स वेयर वी स्टॉप अप टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये टेबल भर है, पूरा कॉपी किया है। ट्राई टू थिंक व्हाट इज दिस, कॉपी इट, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल इंटीरियर एंगल तक सब कुछ आना चाहिए। टुमारो देर विल बी एन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्विज, सो प्लीज मेक श्योर यू see the video 2 times, write everything properly and revise. इनफैक्ट ऑनलाइन टेस्ट के टाइम पे तुमने जो लिखा है वो सामने रखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।